for the beginners. It is just for beginners. uh, uh, I make sure that आप लोग कुछ तो लर्न करके जाएंगे यहाँ से, एंड हाँ सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं. आई विल टीच यू हाउ टू प्ले अ सॉन्ग विद दिस. सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आई एम अ गिटारिस्ट एज वेल एज आई एम अ सिंगर ऑल्सो. आई डू लाइव शोज. आई हैव अ बैंड इन अ झांसी. सो okay, हाँ. So without wasting any time, can we start? यस आप स्टार्ट कर सकते हैं. Okay. So first of all, I will like to tell you some basic anatomy of the guitar. Okay, so that's about the parts of the guitar. Guitar is usually divided into three parts. Okay, so first here, this much part is the head of the guitar, and this is the neck of the guitar, and this is a body of the guitar. Okay, so and the head consists of the tuning pegs are basically to lower or higher the pitch of the strings or sound created from just strumming or playing. uh, and we have here a sound hole जिसके थ्रू साउंड आता है गिटार का. Okay, and here we have a bridge and strings are connected to the string are connected here with the bridge pins. Okay, and we have a neck. On neck we have a fretboard. Fretboard usually fretboard रहता है कि जिसपे अपन फिंगर प्रेस करके प्ले करते हैं गिटार को for different kind of sounds. Okay, and so coming through, what is fretboard? Fretboard is basically a collection of frets. Okay, frets are this metal piece here, are the metal piece here. In between this, it's the fret of the guitars. So frets are also numbered. Frets are numbered as first fret, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, so on. Okay, many guitars consist of 20 frets, 19 and 24, 21. Different kinds of guitars are there. We will just learn today. We will just learn about basics. So let's know if you have any. No, don't play blues. Okay, so here we are going to tell you the fretboard have these inlays. So am I audible? यस आई थिंक वो उनके एंड पे है. यू कैन कंटिन्यू. ओके, मैंने कमेंट्स देखे हैं अभी यार. तो यहाँ पे इन डॉट्स को इनलेज बोलते हैं. इनलेज या फ्रेट मार्कर्स, जिसके थ्रू अपन फ्रेट को याद रख सकते हैं कि कौन सा फ्रेट कहाँ पे है. जैसे बेसिकली देयर आर 3, 5, 7, 9 एंड 12 फ्रेट में. नोट्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से. ओके, सो और दिस इज अ 6 स्ट्रिंग गिटार. बहुत तरीके के गिटार आते हैं. 6 स्ट्रिंग भी आता है, 4 स्ट्रिंग आता है, बेस होता है जो यूकेलेली होता है 4 स्ट्रिंग का, एंड बहुत तरीके के गिटार आते हैं. सो दिस इज अ बेसिकली अकूस्टिक, सेमी अकूस्टिक गिटार आई हैव. तो नाउ it is having a 6 strings. तो 6 string are named as आप लोग इसको लिख सकते हैं. जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो इसको लिख लें. 6th string, the first string, that is a thickest string of the guitar, is also known as the low E.
then there is a fifth string, it's an A, it's and fourth string is a D, third string is G, and second string is B, and first string is E. E, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो ई हैं इसमें, तो दो इसलिए हैं क्योंकि दिस एंड दिस आर, yes, I can provide notes. Okay, so this and this string are usually the same. It is a low, it is a low sounding string that have bass tone, and it is a treble string with the same sound, that is E on both ends. So आपको अब हम बताएंगे कि फ्रेट्स पे फिंगर कैसे हैं, फ्रेट को बजाते कैसे हैं, ठीक है। इस पे एक अपन मेलोडी भी सीखेंगे छोटी सी, सबने ही सुनी होगी, बहुत प्यारी मेलोडी है, आई विल टेल यू आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो स्ट्रिंग्स के नाम तो मैंने बता दिए हैं, स्ट्रिंग्स लिख लिए आप, स्ट्रिंग्स आप लोग लिख लीजिए, ई, ए, डी, जी, बी एंड ई। ओके, आर यू डन? Yes, you can learn by this. Every beautiful girl deserve an eye. So moving on next, we have to fret. What is, we have to learn all the frets name. That's first, second, third. We have to remember all these. So starting from fret, start from 0. Okay, basically fret start from 0. 0 fret is played as like this, open. It's an open string. Open we play. We don't place a finger here. We don't place any finger on the fret. That's an open. Okay. So 0 is this, first is this, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, so on. So usually we just have to place a finger here, on not in the middle, just near to this metal piece, just near to the metal piece, just slightly behind this, just slightly behind this, we have to place our finger here. So we have to press it tightly, then we have to just stroke with this pick. तो हाँ, एक और important चीज, how to hold an spectrum. This is a, everyone have this, ये तो सभी के पास होगी। तो इसको पिक बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको पकड़ते कैसे हैं, इसको पकड़ने का सही तरीका क्या है? we just place a thumb over here, we just have to just hold it like this, and now you're good to go. So just we have, before placing your finger on a fret, how to stroke with this. Now you have to just keep your hand over here, just stroke, one stroke down, one stroke up. We have to play in an alternate picking is the best and the fastest way. Okay, so you just have to up, down, up, down, up, down, up. Try it. This down, up, down, up, down, up, and gain your speed. Play only first string. You just play the high string. High, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. 20 times you can play. You will have play like this. See the speed. Every time you play, you just have to remember, you have to do an alternate picking.
पिकिंग का ही यूज करना है आपको टू प्ले द टैब्स ऑफ द गिटार. सो ऑन फ्रेट पे फिंगर कैसे रखते हैं. सो फ्रेट बोर्ड, इस पे अपन फिंगर थंब ओवर एयर. Everyone place your thumb behind the metal piece. See, give a closer look. Behind the metal piece, second, behind, third, sixth. You have to press it tightly and just stroke it. Try it with your सारे फिंगर का यूज करो गिटार पे. So now I will be moving on. I'm just giving a basic exercise. आप लोग सब लोग लिख लो इसे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. I will give you a basic exercise to remember. Just take a two strings. Okay. Listen, E and B. E. Now here, place a finger over here on a B string. B string, first fret. B string, first fret. First finger, second fret, second finger, third fret, third finger, and fourth fret, fourth finger. Okay. And then moving to E. Move to the first, same here. First, second, third, and fourth. 1, 2, 3. दैट्स अ बहुत आगे का कोर्स है. आप लोग बहुत आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सोलो पेंटाटोनिक्स. आई विल बी टीचिंग इन माय वर्कशॉप. आई एम जस्ट हियर फॉर जस्ट अ बेसिक कि आप लोग कुछ तो बजा के जाएंगे यहाँ से आज. ठीक है. आई विल टीचिंग यू सॉन्ग कॉल्ड, सभी ने सुना होगा, A.R. रहमान मूवी. ठीक है. तो मूविंग you have to practice it for at least 2 minutes. You have to practice it. First move your finger over this. You just write down this exercise. आप लोग लिख लो इसे, याद रखना. तो अगर आप लोग नेक्स्ट लेसन लोगे तो ये बहुत काम आएगी आपके. You गुड. ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सबको. और लिखे बिना काम नहीं होता है गिटार में. You have to make notes. Now moving to next. ठीक है. तो मैं एक सिंपल सा सॉन्ग बताऊंगा. सबको फिंगर्स रखनी आ गई है. ओके. तो मैं एक सिंपल सा सॉन्ग बताऊंगा आपको जो बहुत सब लोगों ने सुना होगा. सब लोग गाते भी हैं. किसी का बर्थडे होता है, इट्स एन हैप्पी बर्थडे. ओके. तो just you have to write down the note. First you have to write. I'll be giving you numbers that are fret numbers. Okay. So write, take a copy. Everyone take out the copy या paper, कुछ भी. So first you have to mention the name of the string on which we are playing. That's an E string, right? E string.
That's a high E string. Okay, that down one we are playing here. This is string. So write E and arrow mark कर देना आगे. Now I will be giving numbers. तो आपको उस हिसाब से play करना है. Are 0, 0, 2, 0, 5, 4. ओके, तो सबके बीच में स्पेस है, कॉमा लगा देना. ठीक है. एंड नाउ second line of the happy birthday song. Down again E string on second line also. Now 0, 2, 0, 7, 5. Now next line E string arrow 0, 0, 9, 7, 5, 4, 2. The next string E 10, 10, 2 times it 10, 10, 9, 5, 7, 5. Okay, so now I will be showing how to play it. Okay, so you just have, पहले तो इसको ऐसे ही पकड़ना है. Place your hand over here. You have to remember alternate picking every time you play. So now the first note is 0. What is 0? आपको मैंने बताया था कि 0 क्या होता है. 0 is an open note. So इसको ऐसे ही play करेंगे. Open string. Okay, then place. Okay, so now there is 2. Where is 2? See the second fret. It's in first string and second fret. Over here and press it. 0, 5. Place your finger over 5 and then back 5. You have to press it tightly. सबको tightly press करके first string को बस stroke करना है. और see, I will play it one time. You will, आप लोगों को सबको knowledge लग जाएगी कैसे बजाना है इसे. Yes, I can repeat write it down again. On the E string 0, 0, 2, 0, 5, 4, first line. Second line 0, 0, 2, 0, 7, 5. Third line 0, 0, 9, 7, 5, 4, 2. And fourth line 10, 10, 9, 5, 7, 5. Okay, now play it. You should आप लोग कमेंट कर दीजिए. जिस समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं तो सारे लोगों को एक साथ देख नहीं सकता हूँ. See, play it like this. You have to hold it. मतलब जब तक नोट एंड नहीं होता तब तक उसको नोट होल्ड करना है आपको. टाइट प्रेस करना है कि आवाज म्यूट ना हो. इफ यू विल, आप लोग इसको धीमे प्रेस करेंगे तो ऐसी आवाज आएगी. So, अपन को टाइट ही प्रेस करना है इसको. ईच लाइन आप लोग
हर लाइन को 5-5 बार बजाइए, हर लाइन को बजा के, मतलब उससे स्पीड आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये तो आप लोग प्रैक्टिस करना ही, ये तो आप लोग प्रैक्टिस करना। आई विल टीच यू। आप लोग ऑल्टरनेट पिकिंग हमेशा याद रखना है इसको। एंड दिस इज एन एक्सरसाइज, दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज। ओके, सो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। और फिर नेक्स्ट इज, next I will be teaching some basic chords. Okay, I will give you 2 chords and you can play a song over them. आप लोग एक सॉन्ग बजा सकते हो उससे। तो जिसको बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, लिख लीजिए, आप लोग कॉपी निकालो, कॉपी भी साथ में रखो। So now I will be giving notes. That's an first chord is E major. E major. You have to write it down. E major. आप लोग को बनाना पड़ेगा इसको. I will be showing how to read a chord or how to make it. या you just, अगर आप लोग डायग्राम नहीं समझ पाते हैं अभी, तो उसके लिए आप लोग एक ऐप आता है जिससे आप लोग गिटार ट्यून कर सकते हैं, ट्यून भी कर सकते हैं, उसमें कॉर्ड्स भी रहती हैं। गिटार ट्यूनर करके ऐप होता है, उसको आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लेना, गिटार ट्यूनर ऐप। ओके, तो और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका गिटार हमेशा ट्यून होना चाहिए। गिटार अगर ट्यून नहीं होगा, तभी बड़ा गिटारिस्ट हो, इट विल साउंड वर्स्ट। ठीक है, तो आपका गिटार इन ट्यून होना चाहिए। ठीक है, तो गिटार ट्यूनर में आप लोग को साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें जो जो जिसके पास ऐप है वो देख सकता है। आई विल बी, और बाकी लोगों को मैं डिक्टेट करके बता दूंगा कि कॉर्ड कैसे, ई मेजर बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ई मेजर, यू हैव टू प्लेस योर फर्स्ट फिंगर ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। oh sorry, third string fourth first fret, third string first fret, first finger. Okay, and second finger you will be placing on fifth string second fret, and you will be placing on fourth string second fret. So it will look like this. See, it's an E major chord. E major chord, and make sure कि, और आप लोग कॉर्ड चेक कैसे करेंगे आपकी बिल, तो उसके लिए आपको सारी स्ट्रिंग, आप लोग को प्लेस ऐसे करना है कि सारी स्ट्रिंग की आवाज आनी चाहिए क्लियर। एंड यू हैव टू जस्ट स्ट्रोक इट। जिसने नहीं लिखी है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट 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 फिंगर, फर्स्ट फ्रेट एंड थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर fifth string second fret, and third finger fourth string second fret. That's an E major chord. सब लोग लिख लें ऐसे। ठीक है, तो इससे आप लोग एक गाना गा सकते हैं। अभी मैं गाना बताऊंगा, इस पे एक गाना बताऊंगा मैं। तो यू विल बी प्लेसिंग लाइक दिस
एंड डाउन स्ट्रोक, एक बार इसको डाउन स्ट्रोक करें बस, सारी कॉर्ड चेक कर लें। And moving to next chord. Next chord is your A major chord. You should write down A major chord. So A major, you have to place your fingers like this. First finger on the second fret, fourth string. You can write, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। जिसको अगर डायग्राम नहीं बनाना आ रहा है तो उसको लिख लीजिए, बाद में आप लोग इसको प्रैक्टिस कर। फर्स्ट फिंगर विल बी ऑन fourth string, second, okay, second finger you will be placing on third string, second fret. Second finger you will be placing on second string, second fret. Okay, so it will look like this, see. So now you have to check it again, you have to check it. सारी रही है, कोई म्यूट तो नहीं हो रही है। इफ एनी स्ट्रिंग इज म्यूटेड तो उसको और टाइट प्रेस करने की कोशिश करो कि हाँ आवाज, आपकी आवाज क्लियर हो बस इस पे। सो अब आप लोगों को एक प्रैक्टिस, शिफ्ट योर द, आई हैव गिवन यू 2 कॉर्ड्स, तो करना सीखना पड़ेगा बस। दैट्स एन ए, दैट्स एन ए। तो आप लोग को इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले ई बनाना है, ए पे शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई विल बी, हाँ अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रमिंग दूंगा, बेसिक stroke it down. You have to stroke it 8 times or you can stroke it 4 times on each chord, ठीक है। तो स्ट्रोकिंग इट 8 टाइम्स, तो उसमें डिफरेंट टाइप की रिदम रहती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीड से बजाते हैं। जैसे कोई स्लो सॉन्ग है तो उसको अपन ऐसे बजाएंगे 2 4 on this 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 नाउ, और 8 की 8 4/8 की स्ट्रमिंग, ठीक है। तो नाउ वी विल बी, बस अपन को इसकी स्पीड फास्ट करनी है। ओके 5 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 6 7 1 6 7 देने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाउन 8 टाइम्स एंड 4 टाइम्स लर्न कर लीजिए। इस अगर आप लोगों ने सुन, आई विल बी सिंगिंग, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको गाना, ये वाली कॉर्ड्स पे ये वाला गाना कैसे सूट करेगा। क्या बताऊं मैं यहाँ में आस है, मेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है यहाँ मेरी पतंग
doing 1 2 7 8 1 2 6 7 8 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड द ए एक मिनट रुकना सब लोग। तो ए मेजर कॉर्ड जो नहीं बजाई जाती है, ठीक है, जो मैंने ए स्ट्रिंग मैंने बताया इसको सिक्स स्ट्रिंग नहीं बजाई जाएगी। ए एक मैं मेंशन करना भूल गया, अपन बनाएंगे तो इसमें बस सिक्स स्ट्रिंग को म्यूट कर देंगे इधर से ऐसे, सिर्फ थंब को हल्का सा टच कर देंगे सिक्स स्ट्रिंग से, तो इट विल बी म्यूटेड, ये म्यूट हो जाएगी कॉर्ड, ये बजेगी नहीं फिर। इसको म्यूट करना है, फिर ये रेस्ट आपकी सारी स्ट्रिंग बजनी चाहिए। You just practice, you just playing and switching over the next to song in ये सॉन्ग के वैसे बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, तो मैंने जस्ट एक बिगनर्स के टाइप से बताया है कि इस सॉन्ग को ऐसे भी प्ले कर सकते हैं आप लोग। तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपको बस रेस्ट नहीं लेना, मतलब बीच में रेस्ट नहीं लेना है इसमें। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इसके बीच में जो गैप है, गैप नहीं सुनाई देना चाहिए। यू कैन प्ले अ सॉन्ग नाउ। आप लोग ऐसे इस पे सॉन्ग बजा सकते हैं अब। ठीक है, और तो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जिनको आता है थोड़ा सा गिटार, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर सकता हूँ क्या क्या बजा सकते हैं वो लोग अभी। विल गिविंग यू सम, अगर आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना हो पानी दा, आई कैन टीच यू। सो नाउ जस्ट वी हैव, इसमें बिल्कुल अलग ही टाइप की कॉर्ड्स हैं, कोई जो इंटरमीडिएट है वो इसको लिख लें, बाकी जो बिगनर्स हैं वो उतना ही कोर्स प्रैक्टिस करें, पहले उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। ज़्यादा आगे बढ़ेंगे मतलब गिटार को जितना स्लोली लर्न करें, ज़्यादा वो स्टेप हो जाएगा आप लोगों का। हाउ टू नो अबाउट वर्कशॉप, वर्कशॉप के लिए या hey guys, so मैं अपना basically I am pinging my number. So in case anyone wants to know the details, I will send you. So yeah, ping me here. WhatsApp पे आप मुझे पिंग कर ऑल सकते द हैं। डिटेल्स। या तो मैं आपको ब्रोशर भेज दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स है। कूल। या सो बिगनर्स को क्या करना है, बिगनर्स को पहले तो फ्रेटबोर्ड लर्न करना है, ठीक है। सेकेंडली स्ट्रिंग्स के नाम लर्न करने हैं, से फिंगर प्लेस करते हैं, वो जो एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को स्पीड के लिए। और नाउ मूविंग, और ये आप कर सकते हैं। अब मूविंग टू थोड़ा सा इंटरमीडिएट, जो थोड़ा सा आगे हैं, जिनको गिटार की सारे लोगों को कॉर्ड्स पता है, बहुत लोग बैठे हैं कि कुछ टेस्टिंग सा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे का भी बताता हूँ। अ, तीन कॉर्ड्स यूज हुई है, तो माइनर कॉर्ड सभी को, जो इंटरमीडिएट है उनको तो पता ही होगी, और उसको लिख लो आप लोग तो ज़्यादा बेटर है। ई माइनर, डी, डी मेजर, सी मेजर एंड डी, अगेन डी। सो दैट्स, और इसको
अपन को बजाना है लूप पे, ये कॉर्ड्स रहेंगे पूरी लूप पे, ठीक है। बेसिकली दो कॉर्ड्स रहेंगे लूप पे, एंड देयर इज अ पार्ट कम होने दे, ठीक है, जो उस पे आएगी अपनी सी कॉर्ड, ठीक है। सी कॉर्ड वहां पे यूज होगी, बाकी कहीं नहीं यूज होती है गाने में। तो बेसिकली दो दो कॉर्ड पे ही गाना हो जाता है ये। अब इसकी स्ट्रमिंग, तो ये लेसन से स्ट्रमिंग इज डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। राइट इट डाउन, डी यू डी यू यू डी यू डी यू, or you can write it as up arrow, down 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 up down down up down up down up, पानी दा। मूविंग ऑन टू इंट्रो। इंट्रो अगर आप लोग लर्न कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो बिगनर्स बिगनर्स नहीं है उनके लिए है बस, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिगनर्स लोग ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें इस पे। सो हेयर you have to place it E minor, and on your third finger on the third string, and that's in chord E sus2. E sus2, you just have to remove your this finger, तो इस फिंगर को हटा देंगे तो E sus2 की जगह ये एक पैटर्न बन जाएगा, इसमें E माइनर, and your third finger will be on the second string third fret. So you have to place it like this, देख लीजिए आप लोग, you have to place your finger like this for the intro. For the intro you will okay, तो that's a pattern. इसमें आपकी strings बजेगी 4 3 1 2, 4 3 1 2 3, 4 3 1 2 3. Pattern will be goes like this only. Now next chord is D, ठीक है। D मेजर, आपको D मेजर बनानी है, ठीक है। D मेजर में से अपनी सेकंड फिंगर हटा देना बस, सेकंड फिंगर हटा देना है बस, ठीक है। डी मेजर बजाते वक्त अपनी सेकंड फिंगर हटा देंगे, तो नेक्स्ट विल बी सॉरी, oh sorry, you don't have to remove that, that's a proper D मेजर, ओके। तो D मेजर में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 4 3 1 2 3, 4 3 1 2 3, 4 3 1 2 3, 4 3 1 2 3, then repeat. Now this E, now you have to stroke after, जितने भी बार बजता है वो शायद 2 बार बजता है गाने में, गाने में सिर्फ 2 बार बजता है ऐसा इंट्रो। Now you have to place your C chord, okay, तो C D and then आपको E स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी है, E स्ट्रिंग पे डायरेक्ट स्ट्रम करना है स्टार्ट। दैट्स पानी दाग का ये एक लूप चलेगा, ठीक है। दिस इज एन इंट्रो, मैंने इंट्रो बताया आपको। इसके बाद जिसको नहीं आते हैं कॉर्ड्स तो मैं कॉर्ड्स लिखवा देता हूँ, जस्ट राइट डाउन ई माइनर कॉर्ड, E minor chord that will be fifth string second fret second finger, fifth string second fret second finger, and third finger
second fret, fourth string. ठीक है. नेक्स्ट तो डी का लिख लीजिए आप लोग. डी विल बी फर्स्ट फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, second finger, first string, second fret, and third finger will be on the third fret, second string. First finger, second fret, third string, second finger, second fret, first string, and third finger, third fret, second. That will be a D. And you have to just play the 4 strings only. लास्ट सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स बजानी है. वाली म्यूट करनी है आपको सारी. ऊपर वाली दोनों स्ट्रिंग म्यूट करनी है, सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स मेजर. इसको आप लोग लिख लेना जरूर, डी मेजर. नाउ मूविंग टू सी. हाउ वी विल मेक सी. 2 स्टाइल हैं सी बनाने. आई विल प्रेफर माई स्टाइल. मैं अपना तरीका बताता हूँ. वैसे तो बहुत लोग बिगिनर्स जो होते हैं वो इस टाइप की सी बनाते हैं, पर आई विल बी थोड़ा सा इंटरमीडिएट सिखाता हूँ. दैट विल बी इजी. तो फर्स्ट फिंगर विल बी ऑन स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट. ठीक है. And second finger will be on fourth string, second fret, and your third finger will be on third string, fifth. ठीक है. So make sure आपकी सारी string properly बजे. You have to just practice. Then switch to E minor. E minor, D, C, D. E minor, D, C. आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी कि कॉर्ड स्विचिंग प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को. ठीक है ना. स्ट्रमिंग तो मैंने बताई है आपको. डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप. ठीक है. तो वी विल फर्स्ट इंट्रो वी विल स्टार्ट. ओके. इंट्रो मैंने बताया था. इंट्रो जिसको आ गया है इंट्रो, वो अपने गिटार पर ट्राई करे एक बार बजाने का. दैट्स एन ई मेन पैटर्न. मैंने जो बताया था आपको ई सस2 जैसा है थोड़ा सा पैटर्न. तो we will pluck this strings like 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3. मैं आप लोगों को 4 3 1 2 3. You have to just secondly then on D string 4 times, then you have to D and start the strumming of the song. Up down down up down up down up down down up down down up down up down. So पानीदा ऐसे ही बजेगा. अच्छा, आप लोग सब लोग ना को आता है वो मेरे साथ बजा भी सकता है. ठीक है. ट्राई कर सकता है बजाने का. तो मैं सिंपली सिर्फ गाऊंगा. मैं थोड़ा सा, आप लोग स्ट्रमिंग करना उस पर. आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए. जिसको नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा. कोई भी डाउट्स हो मैं दोबारा बताऊंगा. देवांशु मिश्रा, यस सर. ओके.
क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो आप लोग सब लोग अपना गिटार लेके बैठो और मैं गाऊंगा, आप लोग बजाना साथ में, ठीक है? तो वी विल बी दिस ई स्ट्रिंग। ई स्ट्रिंग पहले बजानी है अपन को। ई स्ट्रिंग पे यही स्ट्रमिंग, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन। ओके, डी कॉर्ड में रिपीट कर देता हूँ। डी कॉर्ड विल बी फर्स्ट फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग, second fret, and third finger, second string, third fret. ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को? नाउ वी विल प्ले, नाउ वी विल प्ले द सॉन्ग विद इंट्रो। ओके, इंट्रो भी बजाना है आप लोगों को, ट्राई करना है इंट्रो बजाने का। तो 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1। मेरी अखियां जो अखियां पे आएगा, अखियां जो अंजूर दे। 4 times, you have to do this 4 times. The pattern is very same. E, D, E, D, E, E, then C, D, E. Mariana आया, रांझियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, then C, D, E. तू भी आ सबको छोड़ के, पानी दा रंग बैठ के, मेरी अखियां जो अंजूर दे। सो ये है। फिर एक लाइन और आती है इसमें, तो यू हैव टू जस्ट डू द सिंगल स्ट्रोक ऑन दैट। उठे उठे देखे ई, अखियां मिलाਉਂਦੇ डी, सॉरी डी, ना जाना सी, तू हमें कभी छोड़, डी एंड ई। तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा, मिलेगा तुझे कोई, तू भी आ ना। सॉरी, तू भी आ पे अपन को फिर से इंट्रो लेना है। इंट्रो लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तू भी आ सबको छोड़ के, तू भी आ सबको छोड़ के, मेरी अखियां जो अंजूर है। एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ मैं क्या गा रहा हूँ, मैंने दोनों ईयरफोन्स लगा लिए थे। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? प्लीज कमेंट कर दो एक बार, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग को आ गया है। और किसी को डाउट है तो कुछ भी पूछ सकते हैं इस गाने के। मेरा ओके आ गया, सबको आ गया। जिसको डाउट है कुछ पूछ लो। Yeah, hey Yash. So, like, I यस, think हेलो हेलो।
हेलो मी. That's it for today, right? आज के लिए. Okay, yes, yes. Yeah, great, guys. So yes, if you want to speak a bit about the workshop, आप क्या क्या सिखाओगे उसमें? हाँ, वर्कशॉप में यू विल बी लर्निंग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्टेव्स हैं गिटार के, थोड़ा सा स्केल्स के बारे में भी बताऊंगा मैं, एंड फिंगर पिकिंग टेक्निक्स हैं, और मैनी थिंग्स आर देयर, एंड यू विल बी लर्निंग 2-3 सॉन्ग्स. 2-3 एडवांस लेवल पे हैं. यू कैन एंड and you will be learning the tabs of the guitar पे भी. tabs क्या हो, कमेंट करें. Tabs are basically the you play the melodies over the strings like this. This is a finger picking style. That's an advanced style. Okay, so रहता है कैसे कैसे बजाते हैं अपन उसको, एक बार बताता हूँ मैं. थोड़ा सा बताऊंगा मैं टैब्स. लगे हम, तो इसके टैब्स क्या होंगे. यू विल बी प्लेइंग द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इन द मेलोडी फॉर्म. ठीक है, तो उसको ऐसे प्ले करते हैं. सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग. I'm just forgetting the lyrics of the song. तो खैर everyone, this is a तुम ही हो melody. हाँ, मैं तो ये टैब्स इसी टाइप के होते हैं, मेलोडीज रहती हैं छोटी छोटी, या फिर पूरी लिरिक्स को आप उस पर बजा सकते हैं. तो बेसिकली इतना ही है कोर्स में. एक 1 मंथ में आप लोग क्या ही सीखेंगे. ये कोर्स एंड आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने में गिटार के लिए. ईयर ट्रेनिंग रहती है कि आप लोग कॉर्ड्स कैसे पहचान सकते हैं, कोई भी गाना जो प्ले हो रहा है उसके कॉर्ड्स कैसे पहचानेंगे, ते आता है. इसमें आपकी ईयर ट्रेनिंग होती है, बहुत चीज़ें होती है. दैट्स ऑल आई विल बी टीचिंग. Yes. ग्रेट. सो किसी को अगर और चाहिए डिटेल्स तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर रहा हूँ, तो आप मुझे पिन कर सकते हो एंड मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा. ग्रेट. सो अगर इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, आई थिंक बीच बीच में बहुत लोगों को क्वेश्चंस थे, तो आप अभी पूछ सकते हो. आई थिंक वी विल आंसर एवरीथिंग. हाँ, कोई भी डाउट्स हो तो एक बार पूछ लो मेरे से. एनी रिक्वेस्ट, एनीथिंग यू. सर, कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग for the session. That's a request. Sir, which guitar is best for beginners के लिए not prefer above, then you have to prefer the guitar that are the beginner guitar. जैसे यामाहा पे चले जाएं आप लोग. यामाहा का F310 अच्छा है. कॉर्ड का है कॉर्ड 8810E. बहुत टाइप के गिटार्स आते हैं. फेंडर काफी अच्छे अच्छे गिटार हैं, यू कैन बाय. प्लीज डोंट गो एंड देन इंडियन ब्रांड्स. दैट इंडियन ब्रांड में मतलब कुछ कुछ आते हैं, गिब्सन, गॉडसन, दैट आर नॉट, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, वर्थ इट गिटार नहीं है, जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं. हर्ट्स ठीक है.
मैंने बजाया नहीं है. I am having a. Shall we get the recorded lecture videos? Meet someone. Yes, हाँ, so this will be uploaded on our YouTube channel. And guys, एक अभी after this class basically एक feedback form circulate होगा in the group. So please याद से आप लोग feedback form भर दो, क्योंकि that helps us to improve our future classes. So in that आप you can say कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, right? And that will help us understand के हम कैसे इन क्लासेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज फीडबैक फॉर्म भर देना, एंड उसमें वर्कशॉप के बारे में भी एक क्वेश्चन होगा दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन फिल yes in it, and then we'll basically share you the details of the workshop. Great. Yeah. So the recording will be uploaded on our YouTube channel. Please send best guitar list. Best guitar. भाई ऑनलाइन बहुत सारे हैं जो भी 6K के ऊपर हैं. You have to laminated top जल्दी केयर नहीं करो तो बहुत जल्दी. Should be a solid top. Intern गिटार. कैप्स के ठीक हैं गिटार. You can buy. Great, guys. So I think let's close the session. हाँ, नहीं पता मेरे को. I haven't listened to these companies. Yeah, great. All right. So thanks everyone for attending the class. And yeah, we have a lot more class coming in the future. So yeah, stick with us and ping the admins of the group. आप admins of the group को text कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज जानना हो या कोई issues हो, right? So yeah, Yash, we want to sing a song maybe before we close it, and then उसके बाद yeah. हाँ हुमेरा हो गया. सरकार है, इतना स्पैम कर दिया हुमेरा ने. Any request for the songs? गाता हूँ एक बहुत अच्छा गाना है. Have you listened to the song Memories? Okay, yes, I will be singing that. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memory of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memory. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed it forever, everything would stay the same. Now my heart feels like when somebody say your name. No one can reach out to call, I will one day, yeah. 'Cause sometime, someday, everything will be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memory of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memory.
And the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back memories. Sorry if I messed up with the lyrics. कि मैं lyrics खोल के नहीं बैठा था. But I'm sure you all will like it. कि नहीं समझ में आया, कुछ सीखा आप लोगों ने? Great guys. Thanks, Yash. That was really awesome. Thank you so much. Yes. ठीक है guys. So Thank yeah, you again, everyone. so अभी ग्रुप पे बेसिकली फीडबैक फॉर्म आ जाएगा. So प्लीज उसको फीडबैक फॉर्म को याद से भर देना. And yeah, like अगर कोई भी इश्यूज हो, कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन पिंग द एडमिन्स ऑफ द ग्रुप. जो ग्रुप एडमिन्स है आप उनको पिंग कर सकते हो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू. एंड रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा. एंड या ठीक है. सो ऑल राइट, बाय एवरीवन, सी यू ऑल. आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ फॉर Bye. टुडे. बाय. थैंक्स यश, थैंक्स अ लॉट फॉर द क्लास. मैं एक बार यूट्यूब चैनल डाल देता Okay, हूँ. thank you for joining all. Thank you. I hope you all have a great time here. Thank you, Satish. Yes, I have an Insta ID. You can do check out there. It's फिंगरप्रिंट्स होगा थोड़ा सा, 2-3 दिन तो होगा ही. कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे. नॉट ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस करें सफिशिएंट. Yes, that's right. No pain, no gain. You can get all information from me about workshop. यस, मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ. यू कैन पिंग मी हियर. Yes. ठीक है. ऑल राइट. Great. So I'm closing the class now. Thanks, Yash. Thanks a lot, and thanks So everyone write for down joining. Thanks. Yeah. Thank you. Okay. Bye. Thank you Bye, everyone. everyone. Yeah. Okay. Bye.